Welcome back. Today we start with a very important chapter known as shares and debentures. Well, various authors would also name it as company accounts. The reason being very simple, that shares and debentures can be issued by only one form of business organization, that is companies. Therefore, this chapter can also be known as company accounts. Alternatively, it can be named as shares and debentures also. First things first, in today's lecture, we are going to understand the structure of company, the logics behind it, the Y factor, the Q factor, right? So on a fresh page, give a heading shares and debentures. You can also give the heading company accounts. Come on a fresh page and give the heading shares and debentures. Okay, I'll be explaining you one point and I'll also ask you to write it down. So एक fresh page पे आपने heading दे दी shares and debentures. Now let's start writing. As I said, shares and debentures can be issued by only one type of business organization, that is companies. So I think we'll start from this point only कि सर business organization मतलब क्या होता है? Well, when we talk of business organization, it necessarily implies profit motive. The intention is to earn profit. Whether we earn profit or we don't earn profit, that's a different story, but the intention should be to earn profit. That is, profit motive should be there. Yes? By and large, when we talk of our country, that is India, there are three kinds of business organizations. Yes. So the first point what we can write is there are three kinds of business organization having profit motive. The first one is sole proprietor concerns. The second one is partnership firms. And the third one is companies. So business organization can be of three types. Again, I am repeating, when we talk of business organization, profit motive, there can be of three kinds. One, sole proprietorship, that is single owner. तो एक बिजनेस का अगर एक सिंगल ओनर है, then it is sole proprietor concern. Like Vipul Mishtan Bhandar as a single owner, Vipul. So it's a proprietor concern. Next one is partnership firms like VPA. It's a partnership firm. So minimum there should be two partners. Maximum also there is a limit which I'll be covering later. But partnership firm मतलब दो या दो से ज़्यादा owner is partnership firm. And the third one is company. And when we talk of shares and debentures, only companies can issue shares and debentures. Partnership firm and proprietor concerns cannot issue shares and debentures. Why so? ऐसा क्यों होता है? यही हम आज के लेक्चर्स में देखने वाले हैं. Since it's the first lecture on this chapter, I'm going a bit slow. Fine. So this is your first point कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं. सिंगल ओनर इज नोन एज प्रोप्राइटर कंसर्न और सोल प्रोप्राइटर बिकॉज इज द ओनली ओनर. पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. प्लीज राइट इट डाउन. आपने हेडिंग दे दी होगी शेयर्स एंड डिबेंचर्स. सबने दे दी है हेडिंग. चलिए राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट.
यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन नाउ। ये जो अभी हमने समझा है वो भी हम लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट, a sole proprietor concern has single owner। ये जो अभी समझा है आपको, a partnership firm is a business organization having minimum 2 and maximum 50 owners known as पार्टनर्स। सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर, पार्टनरशिप मतलब कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 ओनर्स, नोन एज पार्टनर्स। ओनर्स आर नोन एज पार्टनर्स। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज व्हाई कंपनीज, व्हाट इज अ कंपनी एंड व्हाई डू वी रिक्वायर कंपनी। तो कंपनी इज ऑल्सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। पॉइंट नंबर 4, a company is a business organization which is registered under Companies Act। There is a act, act मतलब law, there is a law known as Companies Act and company is a organization, a person, business organization or a person which is registered under a law known as Companies Act। I am not writing 2013 क्योंकि पहले के Companies Act था Companies Act 1956। तो काफी सारी कंपनीज जो 2013 के पहले चालू हुई है। देयर आर मेनी कंपनीज दैट आर स्टार्टेड बिफोर 2013 लाइक रिलायंस स्टार्टेड इन 1980s, so they were registered under Companies Act 1956 and latest Companies Act version is 2013, so you need not write that, Companies Act is more than sufficient, right? But the question that arises is सर शेयर्स एंड डिबेंचर्स कंपनी इशू कर सकती है, पर कंपनी की आवश्यकता ही क्या है। तो पहले हम इस पॉइंट पे गौर करते हैं। अभी तक आपने ये लिख लिया, ये देख लीजिए। आई सेड आई एम गोइंग अ बिट स्लो। शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज द हेडिंग, आपने लिख लिया। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव प्रॉफिट मोटिव, प्रोप्राइटर कंसर्न सिंगल ओनर, पार्टनरशिप 2 से लेके 50 ओनर एंड कंपनीज। कंपनीज इज अ ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर लॉ। वाई कंपनी, उसमें मैक्सिमम कितने लोग होते हैं, मैं सब आज की क्लास में बताऊंगा। तो पहले हम समझते हैं कि वाई डू वी रिक्वायर कंपनीज, राइट। देखिए, आई स्टार्टेड विद अ, लिसन टू अ स्मॉल स्टोरी। आई स्टार्टेड विद अ बिजनेस नोन एज विपुल मिष्ठान भंडार। यस, विपुल मिष्ठान भंडार। इट वॉज अ सिंगल ओनर। यस, एक मेरी छोटी सी दुकान थी 10,000 स्क्वायर फीट की, वहीं हमारे बजाज नगर में छोटी सी दुकान थी, मिठाई मैं बेचता था एंड आई स्पेशलाइज्ड इन वन स्पेशल मिठाई, राइट। अब धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। अभी तक मैं सिंगल ओनर था, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ी और मैं वेस्ट नागपुर में बेचता था। कुछ दिन बाद समझ में आया कि ईस्ट नागपुर से भी लोग इतना ट्रैवल करके आते हैं और मेरी मिठाई खरीदते हैं। तो बीइंग अ बिजनेस माइंड,
राइट, जिसको बहुत ही पॉलिश वर्ड में एंटरप्रेन्योर कहते हैं, ठीक है। आई थॉट ऑफ कि लोग इतना ट्रैवल करके वेस्ट नागपुर तक आते हैं, इससे अच्छा एक ईस्ट नागपुर में ही और एक खोल लेते। यस, अब पैसे तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने लोगों से पूछा कि आप मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ। अब बिजनेस में अगर पैसे लगाना है, सपोज मैंने आपसे पूछा कि आप मेरे बिजनेस में पैसे लगाओगे क्या, तो बिजनेस में पैसे लगाने के दो तरीके, या तो आप पैसे लगाओ एज अ लोन प्रोवाइडर कि भाई हम तेरे को लोन दे रहे हैं, हर साल हमको इतना इंटरेस्ट चाहिए, या तो इंसान पैसे लगा सकता है ये बोल के कि भाई मैं मालिक बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ ओनर एंड आई विल इंट्रोड्यूस मनी इन द बिजनेस एज कैपिटल। तो बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, या तो यू इंट्रोड्यूस द मनी एज अ लोन प्रोवाइडर और यू इंट्रोड्यूस द मनी एज अ ओनर। अब मैंने आपसे पूछा कि मुझे ईस्ट नागपुर में और एक ब्रांच खोलनी है, तो आप पैसे लगाओगे क्या, तो आप एज अ स्टूडेंट मुझे क्या बोलते हो, हाँ सर हम पैसे लगाने को तैयार है, पर आपको हमको ओनर बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं ठीक है। अब आज तक मैं सिंगल ओनर था विपुल मिष्ठान भंडार में, तो उसे सोल प्रोपराइटर कहते थे। अब आज के बाद मैंने आपको भी ओनर बना लिया, तो अब विपुल मिष्ठान भंडार के दो ओनर हो गए, तो क्या अब इसे सोल प्रोपराइटर कह सकते हैं? नहीं, अब इसे हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। क्या कहेंगे? पार्टनरशिप फर्म। करेक्ट। टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड, कुछ दिनों बाद हमें यह समझ में आया कि मुंबई और दिल्ली से भी लोग मिठाई खाने के लिए आ रहे हैं। तो फिर मैंने और आपने, हम दोनों अब पार्टनर्स हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, मुंबई दिल्ली कुछ अलग अलग मेट्रो सिटीज में भी हम अपनी ब्रांच खोल लेते हैं। वापस पैसों की जरूरत पड़ी, वापस कुछ लोग जुड़े, पर वो सब भी ओनर बनना चाहते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल बिजनेस है तो एवरीबडी वांट्स टू पंप इन द मनी एंड बिकम द ओनर। ऐसे कुल मिला के क्या हुआ कि 2-3 साल में ना हमने अपना बिजनेस भी एक्सपैंड किया और बढ़ते 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 50 ओनर बन गए। 50 ओनर बन गए, नो प्रॉब्लम। जब मैं सिंगल ओनर था तो वो सोल प्रोपराइटर था, जब 2 ओनर हुए तो वो पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो गया, और अब 50 ओनर भी है तो वो पार्टनरशिप फर्म ही है। ठीक है, यस। पर अब अगर मुझे पैसा इंट्रोड्यूस करवाना है, आई कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ ओनर, क्योंकि इंडिया में ये देखिए मैक्सिमम a partnership firm can have minimum 2 and maximum 50 owners only। ये लॉ है, अकाउंट्स का कोई रोल नहीं, ये लॉ है। तो अब अगर मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और ओनर को बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊं? 3 ही टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे। सोल प्रोपराइटर में इट वॉज अ सिंगल ओनर, बोर्ड पे देखिए सोल प्रोपराइटर सिंगल ओनर, ये तो उसी दिन खत्म हो गया। फिर 2 से लेके 50 लोग तक जब ओनर बने तो उसे पार्टनरशिप कहा, अब ये भी खत्म हो गया। अब मुझे और पैसे चाहिए, अब मुझे अब्रॉड में ब्रांचेस खोलनी है, तो लोग पैसा लगाने को तैयार है पर वो लोन नहीं दे रहे, वो बोलते हैं हमको भी ओनर बनना है। अब क्या मैं 51st ओनर पार्टनरशिप फर्म में बना सकता हूं क्या? नहीं, अगर मैंने 51st ओनर पार्टनरशिप फर्म में बनाया तो अब उसे इलीगल माना जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा मुद्दा बहुत सिंपल है, जब जब आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है आपको पैसा लगता है, और हर इंसान की एक लिमिट है अपने घर से पैसा लगाने की। तो कुछ समय बाद तो उसको बाहर वालों का पैसा लाना ही पड़ता है, और बाहर वालों का पैसा 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो बाहर वाले जो पैसा लाए वो ऐसा लोन, या तो ऐसा ओनर। ऐसा लोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो ओनर बनना चाहते हैं तो सिंगल ओनर प्रोपराइटर, 2 ओनर पार्टनर, 20 ओनर पार्टनर, 40 ओनर पार्टनर, 50 तक भी इट इज पार्टनरशिप फर्म। पर अब और बिजनेस एक्सपैंड करना है तो और लोग पैसा लगाना चाहते हैं पर उनको मालिक बनना है, देन इन इंडिया there is only one option now left, that is shift to 3rd type of business organization, that is company. So why the why factor, the Q factor, why do you require company? So this is the first reason you require company, that किसी भी business organization में अगर 50 से ज्यादा ओनर रखने हैं so there is only one form of business organization as per law that supports it, and that is formation of a company. अच्छा, इसका गलत मतलब मत निकालना कि 50 से ऊपर ओनर हो तो ही कंपनी बन सकती है। नहीं, 50 से कम हो तो भी कंपनी बन सकती है। मेरे सेंटेंस को ढंग से सुनिए, 50 से कम ओनर हो तो भी कंपनी बन सकती है, पर 50 से ज्यादा ओनर हो तो कंपनी ही बन सकती है और कुछ नहीं बन सकता।
सो 50 से कम ओनर है तो कंपनी भी बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकती है, पर 50 से ज्यादा ओनर चाहिए तो देयर कैन बी ओनली वन फॉर्म, दैट इज कंपनी, राइट? तो व्हाई डू वी रिक्वायर कंपनी? दिस इज वन बिग रीजन ऑफ हैविंग अ कंपनी. सेकेंड रीजन टू हैव अ कंपनी, व्हाई वुड पीपल स्टार्ट अ कंपनी? चलो सर ये समझ गया, 50 से ज्यादा ओनर है तो कंपनी, चलो समझ गया, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं कर रहा. पर सर 50 से कम में भी लोग कंपनी क्यों खोलेंगे? जब 50 से कम में पार्टनरशिप फर्म अलाउड है, व्हाई वुड समबडी ओपन अ कंपनी? क्योंकि सर हमने सुना है कि कंपनी के रिस्ट्रिक्शंस बहुत रहते हैं, फॉर्मेलिटीज बहुत रहती है, कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, तो कोई कंपनी क्यों बनाएगा? सर ये हमको समझ में आ गया कि 50 से ज्यादा मालिक चाहिए तो इंडिया में अलाउड ही नहीं है, कंपनी खोलना मजबूरी होगी. बट सर आपने अभी बताया कि 50 से कम लोग हैं तो उसमें भी कंपनी की जरूरत है या कंपनी खोल सकते हैं, तो व्हाई डू यू रिक्वायर अ कंपनी इफ देयर आर लेस देन 50 ओनर्स? सर इतना तामझाम कौन पालेगा, इतनी फॉर्मेलिटीज कौन करेगा? सर हम 5 दोस्तों को अगर बिजनेस चालू करना है तो हम पार्टनरशिप फर्म चालू करेंगे, आई एग्री. पर सर आपने बोला कि 5 लोग कंपनी भी खोल सकते हैं, ये हमको समझ गया कि 50 से ज्यादा लोगों को साथ में आना है तो कंपनी कंपलसरी है. इट्स कंपलसरी बिकॉज लॉ डज नॉट अलाउ इट. लॉ डज नॉट अलाउ पार्टनरशिप फर्म अबव 50. तो तब तो कंपनी मजबूरी में खोलनी है. बट 50 से कम ओनर है तो हमारे पास ऑप्शन है ना, हम 5 फ्रेंड पार्टनरशिप फर्म भी खोल सकते हैं. तो व्हाई वुड 5 पीपल ओपन अ कंपनी सर व्हेन द फॉर्मेलिटीज ऑफ कंपनी, द लीगल फॉर्मेलिटीज आर सो मच? आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई इट इज डन. लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल. लेट मी टेल यू अ स्मॉल स्टोरी कि कंपनी क्यों लोग चालू करते हैं अगर 50 से कम भी ओनर है तो. देखिए विपुल मिष्ठान भंडार था, यस, सिंगल ओनर था या पार्टनरशिप फर्म था. सिंगल ओनर है सोल प्रोपराइटर, या 2 से 50 ओनर है पार्टनरशिप फर्म. विपुल मिष्ठान भंडार की मिठाई खाके कुछ लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया, यस, और उनकी तबीयत सही में खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई. तो उनके घर वालों ने विपुल मिष्ठान भंडार पे केस फाइल कर दिया. अब लीगल केस फाइल हुआ और हम लोग केस हार गए और सब लोगों को 1-1 करोड़ का कंपनसेशन जज साहब ने बोला कि आपको देना है. अब दोस्तों मान के चलिए अगर 50 लोगों की भी तबीयत खराब हुई है और सबको 1-1 करोड़ का कंपनसेशन देना है तो वी हैव टू गिव 50 करोड़ टू देम, यस. अब अगर ये सोल प्रोपराइटर है या पार्टनरशिप फर्म है तो 50 करोड़ हमको देना है. अब बिजनेस के पास अगर इतने पैसे नहीं है तो जो ओनर है, सिंगल ओनर विपुल हो रहा है तो विपुल हो रहा सिंगल ओनर, या पार्टनरशिप फर्म है तो हम जो 5, 10, 15 लोग पार्टनर है, हमको अपने बिजनेस से तो 50 करोड़ चुका नहीं है, पर बिजनेस में अगर 50 करोड़ कम पड़ गए तो हमें अपने पर्सनल एसेट्स, अपनी कार, अपने एसेट, अपना घर बार बेच के भी वो 50 करोड़ चुकाने पड़ेंगे. व्हाट आई वांट टू से इज दैट, चेक दिस, in case if it's a sole proprietor, बोर्ड पे देखिए, in case if it's a sole proprietor or a partnership firm, then there is a unlimited liability. Unlimited liability मतलब कल चल के कुछ भी अगर कम ज्यादा हो गया, कल चल के अगर कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो हमको अपना पर्सनल घर बार बेच के भी पैसे चुकाने पड़ेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी, when it comes to company like Reliance Limited, बराबर, अब रिलायंस का पेट्रोल आपने अपनी कार में डाला, ठीक है, और थोड़े देर चलाने के बाद आपकी कार में एकदम जबरदस्त ब्लास्ट हो गया, राइट, पूरी कार उड़ गई, आप भी उड़ गए, सर आपको ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ. अब आपने, मुझे नहीं पता आपको डैमेज क्यों नहीं हुआ, पर नहीं हुआ. अब आपने रिलायंस पे सूट फाइल किया, ठीक है. आप कौन हो ये बात समझ लो, आप कौन हो? आप दुबई के प्रिंस हो. सर क्या बात कर रहे हो, फील करो, अच्छा लगेगा. आप दुबई के प्रिंस हो, आपकी कार में रिलायंस का पेट्रोल डला, आप इंडिया आए थे, आपकी कार में रिलायंस का पेट्रोल डला और कार गॉट डिस्ट्रॉयड, यू गॉट अ बिट सेफ. नाउ हाउ मच मनी यू विल फाइल द केस? तो यू फाइल्ड अ केस अगेंस्ट रिलायंस फॉर 50,000 करोड़. 50,000 करोड़ का केस आपने रिलायंस के अगेंस्ट फाइल किया और मान के चलिए रिलायंस केस हार गया.
अब इस केस में रिलायंस विल पे द मनी, पर रिलायंस के पास अगर पैसे कम पड़े, रिलायंस के पास पैसे कम पड़े तो मुकेश अंबानी को अपना घर बार बेच के पैसे नहीं लाने पड़ेंगे। विपुल मिष्ठान भंडार में पैसे कम पड़ गए तो मुझे अपना घर बार बेचना पड़ेगा। वीपीए पार्टनरशिप फर्म में पैसे कम पड़ गए, हमको अपना घर बार बेचना पड़ेगा, बिकॉज द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। बट व्हेन इट कम्स टू कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड। तो कितनी लिमिट है ये मैं आपको बताऊंगा, बट द बिगेस्ट एडवांटेज टू ओपन अ कंपनी इज लिमिटेड लायबिलिटी। आर यू गेटिंग? यस, दैट इज द मोटिवेशन टू ओपन कंपनी। तो बाय एंड लार्ज इंडिया में अगर कंपनी आपको खोलना है तो दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से आप कंपनी खोलते हो। पहला, लिमिटेड लायबिलिटी, कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, कल चल के कुछ कम ज्यादा भी हो गया तो। और दूसरा, अगर 50 से ज्यादा ओनर है तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, दैट इज कंपनी। बट डज इट मीन 50 के ऊपर वाली कंपनी खोल सकते हैं? नहीं, 50 से कम वाले भी कंपनी खोल सकते हैं। 50 ओनर से कम, 4 दोस्त मिलकर भी कंपनी खोल सकते हैं। पर 50 से ज्यादा लोगों को अगर कुछ खोलना है तो वो कंपनी ही खोल सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अलाउड। आई होप इट्स फाइन। सो द मेजर रीजंस टू ओपन अ कंपनी इज दिस, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी इज अ लीगल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर लॉ। इसका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट नंबर 5, major reason to start a company are, मेजर रीजंस ये लिख लिया ना आपने, कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। आई होप आपने पॉइंट 4 लिख लिया होगा। पॉइंट 5, limited liability of owners. If the number of owners exceed 50, company is the only option. प्लीज राइट डाउन। मैंने आपको कहा एक एक पॉइंट मैं समझाते जाऊंगा और आपको लिखवाते जाऊंगा। प्लीज राइट डाउन। थोड़ा पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट वन, a company has a separate legal entity. Please write down point number 6. A company has a separate legal entity. Legal is the most important word here. Company has a separate legal entity. अब इसका क्या मतलब होता है? सर हमने 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स में या जब भी हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था तब आपने सर हमको एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझाया था कि ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट था, ये लीगल एंटिटी है, दोनों में फर्क है। लेट मी डिफरेंशिएट, एक मिनट। पहले इसका एक और सेंटेंस लिख लो। इट मीन्स company is considered as
a separate legal person by the law. Please write down. Same point. It means company is considered a separate legal person by law. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? It means, same point, it means a company can enter into an agreement legally. It means a company can enter into an agreement legally. तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या मतलब हो रहा है, बता रहा हूं, सुनो चलो एक एग्जांपल ये देखो बेटा। अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, अकाउंट्स के हिसाब से देखोगे तो अकाउंट्स का एक कंसेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बराबर। But that is a concept of accounts which says that owner has separate entity and business has separate entity. ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, मैंने नहीं बोला लिखने के लिए, सुनिए। तो अकाउंट्स का जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है वो कहता है ओनर अलग, बिजनेस अलग, बराबर। प्रोपराइटर अलग, प्रोपराइटर कंसर्न अलग, विपुल वोरा अलग, विपुल मिष्ठान भंडार अलग। पार्टनरशिप फॉर्म वीपी अलग, पार्टनर अलग, विपुल अलग। रिलायंस अलग, शेयर होल्डर अलग, सब कोई अलग अलग, बट दैट इज एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, बराबर। अभी यहां हम लीगल एंटिटी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, बिजनेस एंटिटी नहीं, लीगल एंटिटी। तो अगर हम लीगल एंटिटी कंसेप्ट की बात करें, बराबर, तो इट्स सिंपल दैट proprietor concern and partnership firm do not have separate legal entity. They cannot enter into agreement on their name. It is the proprietor or partner who has to enter into the agreement. I'll keep it simple. अगर विपुल मिष्ठान भंडार, हु इज विपुल मिष्ठान भंडार, अ प्रोपराइटर कंसर्न, अगर विपुल मिष्ठान भंडार को एक जगह खरीदनी है इंडिया में, आप सबको पता है जब हम लैंड खरीदते हैं तो आपने घर में पक्का सुना होगा कि पापा बोलते हैं रजिस्ट्री करवाने जाना है। रजिस्ट्री करवाना है मतलब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जो बंदे ने जगह बेची उसका नाम हट जाएगा और आपने खरीदी तो आपका नाम चढ़ जाएगा, बराबर। इसे कहते हैं रजिस्टर करना, रजिस्ट्री करना, बराबर। लॉ के अनुसार विपुल मिष्ठान भंडार एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो विपुल मिष्ठान भंडार के नाम पे रजिस्ट्री नहीं लग सकती, बिकॉज लॉ के अनुसार, मैं फिर बोल रहा हूं, अकाउंट्स को साइड में रखो, लॉ के अनुसार विपुल मिष्ठान भंडार कोई अलग इंसान है ही नहीं। विपुल मिष्ठान भंडार मतलब विपुल वोरा, तो एग्रीमेंट विपुल वोरा को करना पड़ेगा, रजिस्ट्री विपुल वोरा के नाम से लगेगी। सेम गोस विद पार्टनरशिप फॉर्म। वीपीए, देखो वीपीए एक अलग इंसान है, पर अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स और लॉ में कंफ्यूज मत करो। अकाउंट्स के हिसाब से तो सभी अलग है, अकाउंट्स के हिसाब से विपुल अलग, विपुल मिष्ठान भंडार अलग, विपुल अलग, वीपी अलग, मुकेश अंबानी अलग, रिलायंस अलग। अकाउंट्स का जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है उसके हिसाब से तो सब अलग अलग है, बट हम अकाउंट्स के बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे, हम लीगल एंटिटी, दो वर्ड समझिए, बिजनेस एंटिटी, लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, लीगल एंटिटी। बिजनेस एंटिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, लीगल एंटिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ लॉ। अकाउंट्स के हिसाब से तो सब अलग है, पर जब लॉ की बात आती है तो लॉ में विपुल मिष्ठान भंडार के नाम से जगह नहीं खरीद सकते, वीपीए के नाम से जगह नहीं खरीद सकते, क्योंकि लॉ के अनुसार ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। अ प्रोपराइटर, बोर्ड पे देखिए, प्रोपराइटर कंसर्न एंड पार्टनरशिप फर्म डू नॉट हैव अ लीगल एंटिटी, मतलब लॉ के अनुसार ये लोग है ही नहीं। तो जगह खरीदनी है तो विपुल मिष्ठान भंडार के नाम से नहीं खरीदी जाएगी, विपुल वोरा के नाम से खरीदी जाएगी। वीपीए के नाम से नहीं खरीदी जाएंगी, विपुल वोरा के नाम से खरीदी जाएंगी। तो इट इज, नीचे देखिए ग्रीन में, इट इज द प्रोपराइटर और द पार्टनर हु हैज टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, बराबर। पर वहीं अगर हम कंपनी की बात करें तो रिलायंस के नाम से जगह खरीदी जा सकती है, मुकेश अंबानी को आने की जरूरत नहीं है। रिलायंस अपने आप में एक लीगल इंसान है, लॉ की नजरों में, लॉ की नजरों में रिलायंस एक अलग लीगल इंसान है, वो जगह खरीद सकता है, बेच सकता है। इसीलिए तो कल चल के रिलायंस पे केस आया तो रिलायंस को पैसे चुकाने, मुकेश को नहीं चुकाने। पर विपुल मिष्ठान भंडार पे केस आया तो लॉ के हिसाब से विपुल मिष्ठान भंडार कुछ है ही नहीं, विपुल वोरा को घर बार बेच के पैसे चुकाने पड़ेंगे। वीपीए कोई इंसान है ही नहीं, विपुल वोरा और दूसरे पार्टनर्स को घर बार बेच के पैसे चुकाने पड़ेंगे। लॉजिक समझ में आया? यस, चलिए राइट डाउन। ये आपने लिख लिया था, देख लो, पॉइंट नंबर 6 ये पूरा लिख लिया था, पॉइंट नंबर 6 पूरा लिख लिया था, देख लो। नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 7, लीगल एंटिटी कंसेप्ट। लीगल एंटिटी कंसेप्ट, please write it fast. You can pause the video and write down. फाइन। इसके नीचे नेक्स्ट पैरा, सेम पॉइंट। On the other hand, same point, change the para. On the other hand, a company has separate legal entity and can enter into agreement in its own name. Please write down. On the other hand, a company has a separate legal entity and can enter into agreement in its own name. अक्सर स्टूडेंट को अगर ये डिटेल में ना समझाया जाए, स्लोली ना समझाया जाए, तो उनको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से बहुत कंफ्यूज होता है। बी रोमन इन रोम, बी इंडियन इन इंडिया, एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद चिक्कू। जब आप अकाउंट्स में हो, जब आप अकाउंट्स में, सर हम अभी भी तो अकाउंट्स में हो, नहीं, फिलहाल मैं आपको लीगल एंगल समझा रहा हूं। जब मैं आपको बता रहा हूं कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी क्यों है, ये लीगल पॉइंट है कि लॉ के अनुसार मुकेश अंबानी को घर बार क्यों नहीं बेचना पड़ेगा, ये लीगल पॉइंट है। अकाउंट्स कहां से आया इसमें? अकाउंट्स तो कब चालू होगा? 2 लेक्चर बाद, जब मैं आपको शेयर्स एंड डिबेंचर्स की अकाउंटिंग एंट्री समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको जनरल लॉजिक समझा रहा हूं राइट नाउ।
तो कुछ लोग का डाउट था कि विपुल मिष्ठान भंडार की मिठाई खा के फूड पॉइजनिंग हुआ तो विपुल वोरा को घर बार बेचना पड़ता है, पैसे कम पड़े तो। वीपीए के अगेंस्ट केस फाइल हुआ और पैसे कम पड़े तो विपुल वोरा को घर बार बेचना पड़ता है। पर रिलायंस के अगेंस्ट केस फाइल हुआ, वो दुबई के प्रिंस ने केस फाइल कर दिया और पैसे कम पड़े, तो मुकेश अंबानी को घर बार क्यों नहीं बेचना पड़ता? क्यों नहीं बेचना पड़ता? ये अकाउंटिंग पॉइंट नहीं है, लीगल पॉइंट है। तो आपको लॉ समझाया कि लॉ के अनुसार विपुल मिष्ठान भंडार और विपुल वोरा सेम है। विपुल मिष्ठान भंडार का अस्तित्व ही नहीं है एज पर लॉ, वीपीए का अस्तित्व ही नहीं है एज पर लॉ। कल चल के कुछ भी हुआ तो विपुल वोरा को घर बार बेचना पड़ेगा। पर एज पर लॉ रिलायंस कंपनी एग्जिस्ट करती है और कल चल के कुछ हुआ तो वो झेलेगा, मुकेश अंबानी नहीं झेलेगा। फाइन, नेक्स्ट। तो ये पूरे पॉइंट्स किस पे थे? अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल लॉ की एंटिटी और इसीलिए इट इज लिमिटेड लायबिलिटी। क्यों ओनर की लिमिटेड लायबिलिटी? क्योंकि जो झेलना है कंपनी को झेलना है। इसीलिए तो कंपनी पे इतने रिस्ट्रिक्शंस है जो मैंने आपको बताया। कंपनी चालू करना मतलब हाथी पालने वाली बात है। कंपनी सेक्रेटरी करो, कंप्लायंसेस फॉलो करो। क्यों? क्योंकि कल चल के कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो जो लोगों ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है उनको लॉस होगा, ओनर थोड़ी ना झेलेंगे। यस, चलो नेक्स्ट। नाउ अब कंपनी भी दो टाइप की हो सकती है। बेटा जिन लोग को ऐसा लग रहा है सर जर्नल एंट्री चालू करो ना, बोर हो रहा है, जब तक आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं समझेंगे आपको शेयर्स की जर्नल एंट्री नहीं। अभी तक तो ये वर्ड ही नहीं आया शेयर्स, तो जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी एंड एंजॉय एंड सेलिब्रेट अकाउंट्स। नाउ companies can be of two types. Please write down: public limited company and प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आई एम श्योर आपने ये लिख लिया था पॉइंट नंबर 7। ये पूरा पॉइंट नंबर 7 आपने लिख लिया था, एक बार देख लो। यहाँ थोड़ा आगे ले रहा हूँ, ये पूरा लिख लिया था आपने। नाउ पॉइंट नंबर 8, कंपनी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। प्लीज राइट डाउन: पब्लिक लिमिटेड कंपनी and private limited company. Public limited company and private limited company. अब सर ये दोनों में क्या फर्क है? ऑब्वियसली बताऊंगा। हो गया पॉइंट नंबर 9, private limited company can have minimum 2 and maximum 200 members. Members is nothing but shareholders. Public limited company can have minimum 7 and maximum unlimited number of members. चलो प्लीज राइट डाउन।
Please pause the video and write down. अब सर ये क्या है भाई, कंपनी क्यों है वो समझ में। अब उसमें भी दो टाइप, प्राइवेट एंड पब्लिक। यस, प्राइवेट लिमिटेड में 2 से लेकर 200 मालिक ही हो सकते हैं। मालिक मतलब मेंबर, मतलब शेयर होल्डर। वापस, सोल प्रोप्राइटर में सिंगल, पार्टनरशिप फर्म में 2 से 50, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 से 200, और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अब सर इसमें भी 2 है तो कोई इंसान कैसे चुनेगा कि उसको प्राइवेट करना है कि पब्लिक करना है? बताता हूं, ये हो गया। देखिए काफी बार क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं और मेरे रिश्तेदार ही इस कंपनी के मालिक बने, मुझे एकदम बाहर वाले नहीं चाहिए। पर मेरे रिश्तेदारी 100 है, तो अब मैं क्या करूं, पार्टनरशिप तो कर नहीं सकता, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेगा। व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? जहां कंपनी का प्रमोटर, प्रमोटर मतलब जो बंदा कंपनी चालू करता है, कंपनी का प्रमोटर और उसके रिश्तेदार ही मालिक बन सके इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आउटसाइडर को मालिक बनना अलाउड नहीं है। और पब्लिक लिमिटेड एज द नेम सेज, दुनिया का कोई भी बंदा उसमें मालिक बन सकता है। तो मैं लिखवा देता हूं, राइट डाउन। ये 2 पॉइंट हो गए तो लिखो, नहीं हुए तो पॉज करके लिखो। I'm scrolling down. Please pause the video and write down. Okay. Point number 11. Start writing. A private limited company can have only promoters and his relatives as shareholders. Shareholders and members is one and the same. A private limited company can have only promoters and his relatives as shareholders. And who is a promoter? As the name suggests, a promoter is a person who starts the company. It can be 1 or 2. 2 promoters can also be there. 3 can also be there. So all the promoters and their relatives can become the shareholders in a private limited company. So please write down. Please pause the video and write down. Next point. In a public limited company, anybody can become a member.
फाइन. सो अगर उसे क्लोज फैमिली अफेयर रखना है तो यू गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. एंड देन अगेन यू वांट टू प्ले बिग इन लाइफ, और बड़ा करना है, देन देखो एक लेवल तक खुद का पैसा लगता है, फिर उसके बाद रिलेटिव्स का लगता है, और एक लेवल के बाद इतना बड़ा बिजनेस हो जाता है कि और पैसा बाहर वालों से मंगाना पड़ता है. तो यू गो फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. इज दैट ओके? नाउ, तो अभी तक हमने ये लॉजिक देखा कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, राइट? एंड व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर अ कंपनी. एंड वंस वी हैव अ कंपनी, देन द वर्ड कम्स, इतना सारा किया आपने, देन द वर्ड कम्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स. क्योंकि शेयर्स एंड डिबेंचर्स कैन बी इशूड ओनली बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज कंपनी, और द टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नोन एज कंपनी. तो सबसे पहले तो हमने करीब पौन घंटे में 45 मिनट्स में हमने ये देखा कि व्हाई डू वी रिक्वायर कंपनी, व्हाट आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज. कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इट्स अ सेपरेट पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, अकाउंट्स नहीं, लॉ. ये सब हमने देखा. नाउ वेयर डज द वर्ड शेयर कम फ्रॉम, where does the word debenture come from? Well, debenture is a word which will deal after shares get over. So right now we will concentrate only on the word share, share, share. So how does this word come from? We'll check up in the next class. Have a nice time. Thank you.